And welcome to my channel. So in today's video we're doing ICSE class 10 biology's circulatory system chapter, and it is a part of your semester 2 syllabus as well. So let's begin. So firstly we need to understand what is the need for circulatory system in our body. Why exactly do we need it? So you must know the different reasons. Plus you already know that there are so many systems in our body. Circulatory system is one of them. Digestive system, respiratory, excretory, endocrine, all of them do different work, but they all need the circulatory system in one or the other way. So firstly, nutrients are needed to be transported to every cell of the body. This is digestive system. Once the food is digested and once the nutrients are absorbed, so they need to be transported to each and every cell of the body to function, right? Second, oxygen has to be transported to all parts of the body, and carbon dioxide has to be collected from body parts to be exhaled out of the body. This is respiratory system, right? Once we inhale oxygen, it has to be transported to all the parts of the body, and we have to exhale carbon dioxide, which has to be collected from all parts of the body. Third, excess water, salts, nitrogen wastes like urea, they all have to be removed from the body. This is excretory system, right? If they stay longer in our body, then it's harmful. Then fourth point is hormones secreted have to be carried throughout the body by the blood and act wherever required. So wherever in the body it is required, so these special hormones that are secreted, they have to be flown like throughout the body. They have to keep flowing. So blood is the only way, because blood reaches all parts of the body, right? So this was need for circulatory system in our body. Now, fluids in our body. So you can classify fluids also in two types: circulating and non-circulating. Circulating meaning the one that can move, that are not stationary, and non-circulating, of course, which cannot move, which stay stationary, or wherever they are, they do not move. So circulatory fluids in our body are of two types. There's blood and there's lymph. And non-circulatory, we have many. So tissue fluid, synovial fluid, vitreous, aqueous humor, mucus, all of these. So circulating, so blood is always circulating. It is flowing in all the parts of our body, throughout our body it's flowing, and it's contained in the heart and in the blood vessels. Lymph, it is contained in the lymph vessels and lymphatic organs like spleen, which is located in the abdomen region, and tonsils, which is in your neck region, right? Then non-circulating fluids, we have tissue fluid. So tissue fluid, it occupies the spaces between the cells in the organs, okay? And we have synovial fluid. It occupies spaces in the cavities of the skeletal joints. Vitreous and aqueous humor, it's present in the eye, and mucus is present in the nose, and these all, they do not move, they stay wherever they are, unlike blood and lymph, who circulate throughout the body. Now, two types of circulatory system. We have an closed blood circulatory system, and we have an open blood circulatory system. So closed blood circulatory system, the blood circulates in blood vessels. It is not open, right? It is in a closed manner, in like how water flows in taps, in pipes. You can take it like that, in a closed manner, like how it is in human beings. It flows in blood vessels, right? And we have open blood circulatory system, where blood flows in open spaces of the body, like from heart to the body spaces without the vessels, like how it is in insects, because they have very small bodies, and we cannot they cannot have blood vessels, because then they will only occupy half of the spaces. So that is why they have a open circulatory system, where their blood flows without any blood vessels in the spaces present in the body between the organs and all. Now, properties of the blood. Basic properties: blood is never stationary, it is always moving, always in motion. The color of the blood. So bright red when it is oxygenated,
when it is carrying an oxygenated blood, it is bright red in color, and dark red when it is deoxygenated. So many people think that blood is red and blue in color because it is how we represent it in the books, and in all the diagrams you must have seen red and blue colors being used for red for arteries and blue for veins. But that is a wrong thing. So that is only done to distinguish between the two, between the oxygenated and deoxygenated blood, because it'll be difficult to understand if we show it from bright red and dark red color. So that is why we use red and blue color to show oxygenated and deoxygenated blood, right? Now volume of blood, it's 5 to 6 liters approximately in a healthy adult body. Then fourth is taste. Taste is a little saltish with a pH which is slightly more than 7. So 7 is neutral, 7 is considered neutral, and anything less than 7 is considered acidic, and more than 7 is considered alkaline. So blood is a little alkaline in nature. It has a pH of around 7.2 to 7.3. Then functions of the blood. So blood has two main functions, which is of transportation and protection. So we'll discuss these in detail. So the transport functions of the blood. So transport of digested food, like all the food that has been digested, all the nutrients have been absorbed, so it has to be transported to each and every cell of the body. So this is done by the blood. Then transport of oxygen. So oxygen is carried in our blood vessels. They also have to be supplied to all parts of the body, all cells of the body for respiration. So what happens here, we'll study about hemoglobin later though, but the hemoglobin that is present in blood, it forms a bond with oxygen, that is called oxyhemoglobin, Hb.O2, and because of this hemoglobin, oxygen is in the blood, which is now it is transported in the whole body. Same way, even carbon dioxide, which is now, so respiration needs to take place, right? So carbon dioxide inhales and it is supplied to all cells of the body. Now they give out carbon dioxide as they respire and they give out carbon dioxide. So now this carbon dioxide has to be carried out of the body, it has to be exhaled out. So again, hemoglobin, it forms a bond with carbon dioxide, and this carbon dioxide bond, this Hb.CO2, is called carbaminohemoglobin, and this way it is carried out of the body as well. Now fourth is transport of excretory material, like all the nitrogenous wastes, and because if they stay too longer in our body, they are harmful, they have harmful effects, so they have to be carried out of the body and they have to be excreted. So this is also done by blood. Then distribution of hormones, again, like how hormones, they are secreted by some particular glands, and now they are directly they're carried through blood, and they are wherever it's needed, they're given out. Then distribution of heat to maintain body temperature. So we have to distribute heat to all parts of the body, so we can maintain a uniform body temperature. Then next is protection functions by blood. We learned about the transport functions, now protection functions by blood. So blood forms a clot wherever required and wherever there's a cut in a blood vessel to prevent further loss of blood and entry of disease causing germs. So wherever you have a cut, wherever you get hurt, you might see after some time there's a clot which is formed, or now blood stops flowing out of that cut. So that is also the function of the blood. The blood forms a clot wherever you get hurt or wherever there's a cut for two main reasons. Firstly, to prevent further loss of blood, and second, to to prevent the further entry of disease causing germs in our body. Then second is WBCs, which are in the blood, of course, they engulf bacteria and they protect the body. Then third is it produces antitoxins and antibodies which neutralize or which kill the germs which enter the body, which might have entered the body, right? So if you have a cut and if some germs enter the body by chance, so it is also the job of the blood to produce antitoxins and antibodies which can neutralize or kill the germs which might have entered. So these are all the protection functions that are done by blood.
Now, composition of blood. What all does blood have? So firstly, it has plasma, the liquid part of the blood. It is plasma, and second is the cellular elements, all the cell type of elements. So plasma is the liquid part. It has inorganic salts like sodium bicarbonate, sodium chloride, and it has amino acids, fibrinogen, hormones, urea, etc. All of this is in the plasma. Then cellular elements. So firstly, we have RBCs or erythrocytes. RBCs meaning red blood corpuscles or red blood cells. Then WBCs or leukocytes. WBCs are white blood cells or white blood corpuscles or leukocytes. Then platelets or thrombocytes. So RBC, how to remember the scientific name of RBC? So if you write red blood cells, so red we have RED. So this E that comes, that can help you remember the erythrocytes, right? Spelling. So red E, so erythrocytes, and of course then leukocytes will have to be WBCs, and we have platelets as thrombocytes. Then plasma devoid fibrinogen protein is called serum. So fibrinogen is a type of protein which is present in the plasma, and if we take out this fibrinogen from the plasma, then the remaining whatever the liquid is there, that will be called serum. So plasma devoid of fibrinogen is called serum. Now we will study about RBCs or erythrocytes. So let's discuss their shape. Biconcave or disc-like in shape, how you can see in the picture, right? Biconcave meaning दोनों साइड से concave shape का है, from both the sides, है ना? And disc-like, you can see it's circular like a disc in shape. Then second, they are very small in size, and therefore they can travel through very fine capillaries. So they are very small, and this helps them travel easily even in the smallest of places where it's difficult for blood to reach. So because RBCs are small in shape, it helps blood to reach even the very small fine parts of the body through capillaries. Then third is produced in marrow of long bones in an adult, especially in the bone marrows of ribs, breastbone, ilium of hip girdle, all of these. So now we're talking about their origin or where they're produced. So in normal adult, in marrow of long bones, and in an embryo stage it is produced in the liver and spleen. Then fourth, they don't have a nucleus. So they do not have a nucleus, again it makes their size smaller. Fifth, their life is about 120 days or 4 months. Then sixth, they are old and weak RBCs. This has to be WAK. Weak RBCs are destroyed in spleen, liver and bone marrow. So जो भी पुराने हो जाते हैं, कमज़ोर WBCs हो जाता है, once their lifespan of 120 days is completed, then they are destroyed in the spleen or liver or the bone marrow. One, like you can say, wherever they originated उधर पे ही destroy भी कर देते हैं. Then what is the abnormal increase in RBCs called? It is called polycythemia. So ऐसा हो जाता है कि नॉर्मल से ज़्यादा जब RBCs हो जाए तो उसको पॉलीसीथेमिया कहते हैं. और abnormal decrease in RBCs is called एरिथ्रोपीनिया, जब नॉर्मल से कम हो जाए. Then we'll talk about hemoglobin in RBCs. So hemoglobin is the respiratory pigment of the blood and it is present in RBCs. एंड यही पिगमेंट है जिसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है. अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ये नहीं कर सकते थे. देन सेकेंड, इट हैज़ द एबिलिटी टू easily combine with oxygen to form oxyhemoglobin. An unstable compound readily gives oxygen to the needy tissues. तो हीमोग्लोबिन कंबाइन कर लेता है ईजिली ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जैसे हमने थोड़ा पहले पढ़ा था. और अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो जिस भी टिश्यू को, जिस भी सेल जिनको चाहिए ऑक्सीजन, तो उनको रेडिली दे सकता है क्योंकि एक अनस्टेबल कंपाउंड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना. Then third is it has strong affinity for CO.
दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड. हम काफ़ी सुनते हैं ना ऐसा कि हमें वो बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए जहाँ पे वो कोल जल रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है. तो क्यों ऐसे बोलते हैं? लेट्स सी. So we often hear that we should not sleep in a closed room where coal is burning. This is because due to the loss of oxygen around, or due to insufficient oxygen around, there will be incomplete combustion of coal, and that will result in the formation of CO or carbon monoxide. तो CO2 बनता था बट CO बन जाएगा अब, क्योंकि आपका जो आसपास में जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है इतना, बिकॉज कमरा आपने बंद कर दिया, वेंटिलेशन नहीं है, राइट. सो दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ पॉइजनिंग इन नेचर. एंड हेमोग्लोबिन अब क्या करता है, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा ईजिली इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन कर लेता है. तो ये क्या करता है, ये क्या फॉर्म कर लेता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन HB.CO. और अब ये HB.CO जो हो गया, ये हमारे पूरे ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, है ना. And this may lead to death. Okay, so that is why we should always sleep in a ventilated room. Then coming to WBCs or leukocytes. So let's discuss their shape. They are amoeboid in shape. They do not have a finite shape. जैसे हमने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस के अंदर, तो हमने सीखा था कि अमीबा ना ऐसा स्लाइम टाइप का होता है. इट डज़ नॉट हैव अ फाइनाइट शेप, एक फिक्स्ड शेप उसका नहीं है. वैसे ही WBCs का भी अमीबॉइड शेप है, मतलब कि उसका भी फिक्स शेप नहीं है, अमीबा की तरह है. देन दे हैव अ न्यूक्लियस अनलाइक RBCs. तो RBCs में हमने पढ़ा कि RBC में तो न्यूक्लियस नहीं होता, बट WBCs में दे यूजुअली हैव अ न्यूक्लियस प्रेजेंट. देन दे प्रोड्यूस सूडोपोडिया विद विच दे कैन स्क्वीज आउट थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज. तो ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको सूडोपोडिया कहते हैं, और इस सूडोपोडिया की वजह से WBCs दे कैन स्क्वीज आउट, मतलब बाहर निकल सकते हैं ब्लड कैपिलरीज या जहाँ पे भी ये फ्लो कर रहे हैं वहाँ से लोग बाहर निकल सकते हैं. समझ में आया. और इस प्रोसेस को, जो हम स्क्वीजिंग आउट वाले प्रोसेस को जो सूडोपोडिया से स्क्वीज आउट कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, डायपेडिसिस. ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, बोथ सूडोपोडिया एंड डायपेडिसिस के बारे में. देन दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड्स एंड समटाइम्स इन लिवर एंड स्प्लीन. सो इनका भी प्रोड्यूस ऑलमोस्ट सेम जगह होता है जैसे RBCs में होता था, बट यहाँ पे रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, लिम्फ में भी यहाँ पे होता है, एंड समटाइम्स इन लिवर एंड स्प्लीन. स्प्लीन इज़ अनदर लिम्फ ऑर्गन ओनली, राइट. इनका लाइफ कितने का होता है, 14 डेज़ या 2 वीक्स का, मतलब RBC से काफ़ी कम. RBCs तो 120 डेज़ का था, ये तो सिर्फ 14 डेज़ का है. देन 7th इज़ all WBCs are destroyed in the liver and spleen, which is almost same as RBCs. RBCs को भी ऐसे डिस्ट्रॉय करते थे, तो WBCs are also destroyed in the same manner as RBCs are. Now, abnormal increase in WBCs is called leukemia, and abnormal decrease in WBC is called leukopenia. Alright, then this is a picture of WBCs, या amoeboid shape, और वाइट क्यों है इसलिए. अच्छा, वाइट क्यों है, बिकॉज हीमोग्लोबिन इनमें प्रेजेंट नहीं है. हीमोग्लोबिन इज़ रेड इन कलर एंड इट इज़ प्रेजेंट इन RBCs, राइट, पर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. सो WBCs आर ऑफ 2 टाइप, ग्रैन्युलर एंड नॉन ग्रैन्युलर. ग्रैन्युलर मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, और नॉन ग्रैन्युलर जिसमें नहीं प्रेजेंट है, एक ही है, ये दिख रहा है, एक बड़ा न्यूक्लियस सा है. तो दिस इज़ दैट. ओके, फिर भी अब 3 टाइप के होते हैं और नॉन ग्रैन्युलर 2 टाइप के होते हैं. सो ग्रैन्युलर में हमने देखा ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो सबसे अबंडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा टाइप के WBCs न्यूट्रोफिल टाइप के होते हैं. देन सेकंड इज़ eosinophils, then basophils, then lymphocytes नॉन ग्रैन्युलर है और मोनोसाइट्स भी नॉन ग्रैन्युलर है. सो इनको हमें याद करना पड़ सकता है. सो NEB इज़ ग्रैन्युलर, ग्रैन्युलर को है NEB, न्यूट्रोफिल का N, eosinophils का E और basophils का B. सो NEB, and LM is for non-granular. This is how I usually try to remember things.
एंड ग्रैन्युलर में साइटोप्लाज्म कंटेन्स ग्रैन्यूल्स एंड न्यूक्लियस यूजुअली कंस्ट्रिक्टेड इनटू 2 लोब्स, मतलब 2 लोब्स में, ये दिख रहा है ये जैसे न्यूक्लियस 2 लोब्ड होता है, 2 टुकड़े, मतलब 2 जैसे गली निकल रखी है वैसे टाइप का, तो 2 वो उसका होता है। एंड मोनोसाइट नॉन ग्रैन्युलर में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं प्रेजेंट, और एक सिंगल और एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़, जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका क्या है कि इट एनगल्फ बैक्टीरिया इन अ प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और ये फैगोसाइटोसिस जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे होल प्रोसेस इन डिटेल, बट कौन करता है एनगल्फ बैक्टीरिया विद द प्रोसेस फैगोसाइटोसिस वाले प्रोसेस से, न्यूट्रोफिल्स डज दैट। देन इओसिनोफिल्स, इसमें पूछा जाता है कि कौन से उसकी काउंट इंक्रीज़ हो जाती है एलर्जीज़ के अंदर, तो इट्स इओसिनोफिल्स। तो इसमें यही आता है कि किसकी काउंट इंक्रीज़ हो जाती है, तो इओसिनोफिल्स। देन नेक्स्ट इज़ बेजोफिल्स। तो बेजोफिल्स में क्या है, ये एक केमिकल रिलीज़ करता है फॉर इन्फ्लेमेशन, एंड द केमिकल इज़ कॉल्ड हिस्टामाइन, एंड इन्फ्लेमेशन के लिए रिलीज़ करता है। इन्फ्लेमेशन मतलब आप कहीं भी आपको लग जाती है तो उसका एक रिएक्शन होता है कि वहाँ रेडनेस हो जाती है या वो जगह थोड़ा सा फूल जाता है, या वो जो रिएक्शन वो कौन करता है, केमिकल हिस्टामिन करता है, एंड विच डायलेट्स द ब्लड वेसल्स। तो ये भी बेजोफिल्स का क्या है कि वो इन्फ्लेमेशन करता है, एक केमिकल रिलीज़ करता है हिस्टामिन। देन नॉन ग्रैन्युलर में लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट हैं WBCs में, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है इनके पास, एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ओके, दिस इज़ द मेन फंक्शन। एंड मोनोसाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहली बात तो लार्जेस्ट ऑफ WBCs होते हैं, और उनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड होता है। ये भी पूछा जाता है कि किसका न्यूक्लियस किडनी शेप्ड होता है, मोनोसाइट्स का होता है। एंड ये क्या करते हैं, दे इंजेस्ट जर्म्स, वही मतलब दे ऑल्सो एनगल्फ बैक्टीरिया या जर्म्स को ख़त्म कर देता है। तो ये था मेन जो हमने 5 टाइप्स की WBCs पढ़ी, ग्रैन्युलर एंड नॉन ग्रैन्युलर के अंदर वाली भी, उनके जो मेन फंक्शंस हैं उनमें से यही क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ WBCs। सो फैगोसाइटोसिस जो हमने अभी देखा कि न्यूट्रोफिल्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यूट्रोफिल्स एनगल्फ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को एक तरह से निगल लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, अंदर जैसे ले लेते हैं। सेकेंड इज़ इन्फ्लेमेशन, जो कि ल्यूकोसाइट स्पेशली करते हैं। ल्यूकोसाइट्स मतलब कि ये WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, तो वो, एंड स्पेशली मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे माइग्रेट थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय डायपेटिसिस एंड दे फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स। तो आप बोलोगे कि उनको बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है, एक्चुअली डायपेटिसिस की ज़रूरत ही क्या है। सो ब्लड अभी ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, बट जो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स होंगे दे विल अटैक अ पर्टिकुलर टिश्यू, है ना, एंड वो टिश्यू को लड़ने का ज़रूरत है, तो उसको जो ब्लड चाहिए, उसको जो फाइटिंग पावर चाहिए, वो कौन देगा, WBCs। तो इसलिए जो WBCs ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा होता है वो डायपेटिसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और जिस टिश्यू को ज़रूरत होती है जहाँ पे जर्म्स हैं या जो भी मतलब है, तो वहाँ पे वो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स से फाइट करता है। एंड इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इन्फ्लेमेशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेडनेस हो जाती है, हीट सी प्रोड्यूस होती है, एक अलग ही गर्मी लगती है वहाँ, और स्वेलिंग एंड पेन ये सब होता है, ये इन्फ्लेमेशन का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, WBCs स्पेशली लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू न्यूट्रलाइज और किल जर्म्स। नेक्स्ट ब्लड प्लेटलेट्स ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। तो अभी तक हमने RBCs और WBCs के बारे में डिटेल में पढ़ा, उनकी लाइफ, शेप, स्ट्रक्चर और उनके जो फंक्शंस हैं वो। अब हम ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और थ्रोम्बोसाइट्स। सो दे आर द इंडिकेटर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से होती है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सम जाइंट सेल्स कॉल्ड मेगाकार्योसाइट्स इन रेड बोन मैरो, जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे ही। तो लाइफ इनकी क्या होती है, 3 to 5 डेज़ की होती है, जो कि WBC से भी कम है। एंड दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन एट द साइट ऑफ इंजरी। ये लोग क्या करते हैं,
द प्लेटलेट्स दे डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाते हैं टू रिलीज अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज विच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड क्लॉटिंग को हम ब्लड कोगुलेशन भी बोलते हैं। और जहाँ पर भी हमें कट लग जाता है, जहाँ पर भी हमें इंजरी हो जाती है, लग जाती है, वहाँ पे प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये लोग टूट जाते हैं और ये टूटने के बाद रिलीज़ करते हैं केमिकल सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। और ये क्या करता है, ये इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग के मेन रिएक्शन है। तो जो इंजर्ड टिश्यू सेल है या जो इंजर्ड टिश्यू है वो क्या करेगा, पहले तो वहाँ पे जो प्लेटलेट्स होंगे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और वो डिसइंटीग्रेट होकर क्या रिलीज़ करेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज। अभी जो थ्रोम्बोकाइनेज है इसको काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर एक्स या स्टुअर्ट फैक्टर भी बोलते हैं। एंड दिस थ्रोम्बोकाइनेज इट एक्ट्स एज एन एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। क्या करने के लिए, प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्रोथ्रोम्बिन को पहले प्रोड्यूस करने के लिए विटामिन के चाहिए होता है, और प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है नॉर्मली, जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, तो प्रोथ्रोम्बिन को सी आयंस और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जैसे एक्ट करता है, इन सब के साथ प्रोथ्रोम्बिन को हम थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं और थ्रोम्बिन एक्टिव सब्सटेंस हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था और थ्रोम्बिन एक्टिव। अब थ्रोम्बिन क्या करता है, ये एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस और क्या करता है, फिब्रिनोजिन जो कि हमने अभी पढ़ा था, जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, जो कि सॉल्युबल नेचर का होता है। तो थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयंस क्या कर देते हैं, फिब्रिन बना देते हैं, फिब्रिनोजिन से फिब्रिन बना देते हैं और ये फिब्रिन जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है। और यही होता है, फिब्रिन ही जो होता है ये क्या करता है, इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ स्टिकी थ्रेड्स जिसको हम मैश कहते हैं। और ये नेटवर्क ऑफ स्टिकी थ्रेड्स जो कि मैश प्लस आरबीसीज, तो क्या फॉर्म करते हैं, ये क्लॉट या थ्रोम्बस। सो ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग का मेन रिएक्शन जो सब होते थे वो सब है। यहाँ पे क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं कि विच ये थ्रोम्बोकाइनेज तो ऑफ कोर्स, देन कैल्शियम आयंस का भी काफ़ी पूछा जाता है कि कैल्शियम आयंस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ विच आयंस, तो कैल्शियम आयंस लिखेंगे एंड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देन नेक्स्ट इज हेमोफीलिया। क्या है, हेमोफीलिया इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग ढंग से नहीं हो पाती है क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि चाहिए होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये फिब्रिनोजिन है, ये सब ये इन चीज़ों की कमी की वजह से ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। Then in viral dengue fever, number of platelets falls to an abnormally low count and coagulation occurs very slowly and often leads to hemorrhage. तो वायरल डेंगू फीवर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स का जो नंबर है ब्लड के अंदर काफ़ी कम हो जाता है, और जब प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग ईजीली नहीं हो पाएगी, बिकॉज इतना कम हो गया काउंट, तो पूरे बॉडी में इतने कम प्लेटलेट्स, जहाँ पे भी अगर कट लगे तो कैसे होगा। तो ब्लड कोगुलेशन जल्दी नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होता है, एंड इसकी वजह से ऑफन क्या होता है कि इट लीड्स टू हैमरेज। देन ब्लड ट्रांसफ्यूशन एंड ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, इंजेक्टिंग ऑफ ब्लड इनटू द बॉडीज़ ऑफ पेशेंट्स अंडरगोइंग सर्जिकल ऑपरेशन। तो आप किसी हेल्दी पर्सन का ब्लड लेते हो और आप उसको किसी ऐसे बीमार इंसान के ब्लड में इंजेक्ट कर देते हो जो कि कोई सर्जिकल ऑपरेशन के अंडरगो कर रहे हैं। तो जो डोनर होता है वो कौन होता है, हेल्दी पर्सन हु गिव्स ब्लड इज कॉल्ड डोनर एंड द पर्सन हु रिसीव्स ब्लड इज कॉल्ड रेसिपिएंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टर्नर। देन ब्लड ग्रुपिंग के दो सिस्टम्स होते हैं, ABO सिस्टम एंड RH सिस्टम। सो वील स्टडी दीज सिस्टम्स। अब ABO सिस्टम की बात करते हैं। तो ABO सिस्टम classifies human blood into 4 types, A, B, AB and O। तो हम यूजुअली ऐसे बात करते हैं तो हमें पता है कि एक दूसरे का जैसे ब्लड ग्रुप हम पूछते हैं, राइट। सो ब्लड ग्रुप ये जो ABO सिस्टम में है वो क्या, 4 हमने टाइप्स देख लिए उसके, क्लासीफाई A, B, AB and O। एंड इन्हीं टाइप्स के अंदर भी कौन किसको ब्लड दे सकता है,
ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान हर दूसरे ब्लड ग्रुप से ले लेगा या हर एक इंसान हर दूसरे ब्लड ग्रुप को ब्लड दे देगा, ऐसा नहीं है। सो आप इसको एक ईज़िली किस तरीके से समझ सकते हो, ये तरीका, आप यहाँ ओ लिखो, ए लिखो, यहाँ पे यहाँ ए बी लिखो और यहाँ ए बी लिखो। वंस you've डन दिस, ओ और सबके एरोज़ बना दो राइट हैंड साइड में जाते हुए और सबको बस कनेक्ट कर दो, सबको ऐसे, मतलब कि बी को ए नहीं, ऐसे राइट हैंड साइड राइट डायरेक्शन में जाते हुए। सो ओ से मैंने ए में बनाया, ओ से बी में बनाया, ओ से ए बी में बनाया, तो मुझे दिख रहा है कि ओ सबको ही ब्लड दे सकता है। सो दैट इज़ वाई ओ ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। देन मैंने ओ से तो बना दिया, अब ए बी से भी मैं आगे एक्सटेंड करूँगी। सो ए से ए बी तक बनाया और बी से भी ए बी तक बनाया, तो मुझे दिख रहा है कि ए बी तो सबसे ब्लड ले सकता है, तो इसीलिए ए बी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो और ऐसा नहीं है कि हाँ ए बी को दे सकता है, बी ए को दे सकता है, नो, यही है सिस्टम। ओ सबको दे सकता है, ए भी सबसे ले सकता है, बट बी और ए ब्लड ग्रुप को ब्लड कौन दे सकता है, सिर्फ ओ दे सकता है। और ओ को कौन दे सकता है, सिर्फ ओ वाला ही दे सकता है। सो दिस वॉज ए बी ओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। नाउ ए बी ओ सिस्टम के अंदर जो आपका ब्लड ग्रुप है, जैसे ए बी एंड ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप्स जो हमने जिसमें क्लासीफाई हुआ है ह्यूमन ब्लड, उनके अंदर कौन से एंटीजन्स होंगे आरबीसी के अंदर। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी ही होगा, ए बी है तो एंटीजन ए एंड बी, बट ओ अगर ब्लड ग्रुप है तो इट विल हैव नो एंटीजन। एंटीबॉडीज़ क्या होगी प्लाज्मा के अंदर जो प्रेजेंट होगी, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटीबॉडी बी। एंटीजन ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए, ऑपोजिट ब्लड ग्रुप की। एंड ए बी अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो आपके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास दोनों ही ब्लड ग्रुप है, ए एंड बी दोनों ब्लड ग्रुप है, तो नो एंटीबॉडी। एंड ओ है तो दोनों ही एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी। नाउ RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। सो RH या फिर रेसिस फैक्टर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अ मंकी एंड सम इंडिविजुअल्स मे हैव इट, जिनको हम RH पॉजिटिव बोलेंगे, बट सम मे नॉट हैव इट, जिनको हम RH नेगेटिव बोलेंगे। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप पे जो साइन आता है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे आपका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो बी पॉजिटिव मतलब कि आप में रेसिस फैक्टर जो है RH फैक्टर वो है, बट कुछ कुछ के नहीं होगा, जिनका बी नेगेटिव होगा तो उनमें नहीं है। सो व्हेन द ब्लड ऑफ एन RH पॉजिटिव पर्सन, जैसे मान लो एक इंसान है उसका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है एंड एक दूसरा इंसान है जिसका मान लो बी नेगेटिव मान लो, चलो, तो वो अगर RH पॉजिटिव इंसान का ब्लड RH नेगेटिव इंसान के ब्लड में गया, सो दैट पर्सन डेवलप्स एन एंटीबॉडी फॉर द RH सब्सटेंस विद इन अबाउट 2 वीक्स। RH पॉजिटिव का RH नेगेटिव में गया, मतलब किसी भी पॉजिटिव वाले का ब्लड अगर नेगेटिव वाले में गया तो व्हाट विल हैपन कि मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट विद इन अबाउट 2 वीक्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन क्या हो जाएगा, वो एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगा उसके लिए। और अगर सेकेंड टाइम उस सेम इंसान के अंदर अगर RH पॉजिटिव इंसान का ब्लड वापस से डाल दिया उस सेम RH नेगेटिव इंसान के अंदर, तो जो एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हुई थी पहले बार जब ट्रांसफ्यूजन करा था उस समय की, अब वो क्या कर सकती हैं, दे मे कॉज अ रिएक्शन एंड देन मे इवन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। तो दिस विल हैपन। देन RH फैक्टर इन प्रेगनेंसी। सो एक RH नेगेटिव वुमेन है जो कि एक RH पॉजिटिव चाइल्ड को कैरी कर रही है अपने यूट्रस के अंदर। सो व्हाट कैन हैपन, पहली बार जो उसका पहला RH पॉजिटिव चाइल्ड है दैट विल बी नॉर्मल, बट इफ़ इट सेंसिटाइजेज द मदर देन द सेकेंड RH पॉजिटिव चाइल्ड जो अगर वो कैरी करेगी, जो कंसीव सून हो जाएगा, मतलब जल्दी आ जाएगा, सो इट मे हैव अ प्रॉब्लम विच समटाइम्स मे लीड टू द डेथ ऑफ द फीटस एंड अबॉर्शन। सो RH नेगेटिव वुमन का पहला RH पॉजिटिव चाइल्ड विल बी फाइन, बट सेकेंड RH पॉजिटिव चाइल्ड जो कि मान लो अगर 1 साल के विद इन ही आ गया तो it might have some problems which may lead to the death of fetus and abortion. Now the main part, blood circulatory system. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट ऑफ कोर्स जो मेन
It acts like the head of the blood circulatory system, and blood and blood vessels जो कि हार्ट से लेकर जाते हैं ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं. सो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. देन क्लियरिंग अ मिसकंसेप्शन. यहाँ पे बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम है, मिसकंसेप्शन है कि यू माइट हैव हर्ड दैट मैनी पीपल से कि हार्ट इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड. आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं ना दिल लेफ़्ट साइड पे है हार्ट, बट दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग. Heart is right in the center between our lungs and above the diaphragm. It is right in the center. But what happens is the narrow part, the नीचे का जो हार्ट का जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब थोड़ा सा ट्रायंगुलर है और थोड़ा सा पॉइंटेड टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड है. तो जब भी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमें, और वो बहुत पावरफुल होता है, कॉन्ट्रैक्शन इज़ वेरी पावरफुल एट द एंड्स ऑफ द हार्ट. मतलब जो नैरो ट्रायंगुलर एंड है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़ोर से फील हो सकता है, ऐसा मतलब. तो इसीलिए हमें वो फीलिंग आती है कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे है, सेंटर में नहीं है. जैसे आप यहाँ पे वैसे तो एक एनिमेटेड दिस थिंग एक ग्राफिक वो है, बट आई जस्ट वांट टू शो कि हार्ट इज़ ट्रायंगुलर हियर. इन्होंने लेफ़्ट वो नहीं दिखाया, बट इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप नीचे से स्लाइटली. तो वो थोड़ा पॉइंटेड होता है लेफ़्ट साइड की टूवर्ड्स, जो हमें ऐसी फीलिंग देता है. नाउ आई नो दिस इज़ अ वेरी मेसी डायग्राम, बट दिस इज़ एन ईजी वे टू अंडरस्टैंड दिस. एंड इसमें क्या है, जो हमारा हार्ट है, हाँ पहले तो ये समझना होगा कि हमारा जो अभी राइट हैंड है वो हार्ट के लिए लेफ़्ट साइड होगा, ओके. एंड जो हमारा लेफ़्ट हैंड है वो हार्ट के लिए राइट होगा. तो इसीलिए यहाँ पे मैंने राइट और यहाँ पे लेफ़्ट लिखा है. तो सम पीपल माइट वंडर कि वाई. तो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि हम अगर किसी इंसान की बॉडी में देखें, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरे सामने अगर कोई खड़ा है, तो मेरे लिए जो उसका हार्ट का होगा वो उसका, मेरा हाथ का राइट साइड उसका हार्ट का लेफ़्ट साइड होगा, राइट, ऐसे. दैट इज़ वाई. सो इतना अंडरस्टैंड कर लो. आपका अभी राइट हैंड है ना, वो लेफ़्ट बन गया अभी, ओके. ये डायग्राम थोड़ा मेसी है, बट हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं. फर्स्टली राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल. ऑरिकल ऊपर होता है, वेंट्रिकल नीचे होता है. और 4 चेम्बर्स है, तो मतलब राइट ऑरिकल हो गया और एक लेफ़्ट ऑरिकल हो गया, फिर राइट वेंट्रिकल हो गया, एक लेफ़्ट वेंट्रिकल हो गया. सो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ़्ट, ये 4 चेम्बर्स हो गए. देन 4 चेम्बर्स हो गए. अब इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक बाउंड्री बना रखी है यहाँ पे, राइट. ये हार्ट ऑफ कोर्स नॉट स्क्वायरिश और रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगुलर टाइप का होता है. बट जो यहाँ पे जो बाउंड्री है इसके अंदर ये क्या है बाउंड्री, इट इज़ पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम इज़ द बाउंड्री, मतलब बाहर का जो पार्ट है वो पेरिकार्डियम है. एंड हार्ट इज़ सराउंडेड बाय पेरिकार्डियल फ्लूइड. देन राइट जो आपका है वहाँ के अंदर, यहाँ पे आपको बीच में एक सेपरेशन मिलेगा दोनों राइट और लेफ़्ट के बीच में, और दिस सेपरेशन इज़ कॉल्ड सेप्टम. जो ये बीच में एक सेपरेटिंग मस्कुलर लाइन है जो है उसको सेप्टम कहते हैं. देन राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक फ्लैप टाइप का कुछ है, 3 फ्लैप्स से दिख रहे हैं मुझे. तो ये क्या है, दिस इज़ ट्राइकस्पिड वाल्व. ट्राइकस्पिड, ट्राई नाम मतलब 3, तो 3 है तो ट्राइकस्पिड वाल्व. एंड यहाँ पे भी मुझे 2 फ्लैप्स दिख रहे हैं, तो ये क्या है, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व, ओके. देन मैं यहाँ पे मेरे ऊपर लंग्स मान लेती हूँ, कहीं ऊपर मेरी लंग्स है, थोड़े लेफ्ट हैंड साइड के टूवर्ड्स मान सकते हैं. तो क्या होता है, राइट ऑरिकल से एक वेना कावा करके एक वेन होती है. वेना कावा का ऊपर का पार्ट जो होता है उसको हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, और नीचे का पार्ट जो होता है उसको इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं. सो वेना कावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, ये ब्लू मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए करा है, रेड और ऑक्सीजनेटेड के लिए. तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है वेना कावा, वो किसके अंदर पोर करता है, वो राइट ऑरिकल के अंदर पोर कर देता है. मतलब यहाँ से नीचे के ब्लड पार्ट से जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, और ऊपर के ब्लड पार्ट से तो ऊपर वाला सुपीरियर वेना कावा लेकर आता है, ऊपर जो भी ब्लड बॉडी पार्ट्स हैं उधर से, और नीचे से पोस्टीरियर वेना कावा लेकर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और नीचे के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर राइट ऑरिकल के अंदर पोर किया जाता है,
और राइट ऑरिकल के अंदर अब क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये फ्लैप्स अभी क्लोज्ड हैं, बट जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट अभी रिलैक्स्ड है, अब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैप्स खुल जाते हैं, और जब ये फ्लैप्स खुल जाएंगे तो राइट ऑरिकल का जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो राइट ऑरिकल के अंदर आया, अब वो फ्लैप्स खुल गया तो कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट। अब वो ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, करेक्ट। राइट वेंट्रिकल के अंदर आने के बाद यहाँ से एक आर्टरी जाती है, आर्टरी का नाम पल्मोनरी आर्टरी, और ये आर्टरी क्या करती है, ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक पहुँचा देती है, लंग्स में। तो लंग्स क्या करेंगे, लंग्स यहाँ पे फिल्टर कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक्सहेल आउट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे बहुत लोगों को ये भी लगता है कि हार्ट में ही सब फिल्ट्रेशन होता है, नो, फिल्ट्रेशन तो हैपन्स इन लंग, बट वो लंग से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्चुअली कहाँ लेकर कौन जा रहा है, मतलब कहाँ से जा रहा है, हार्ट से जा रहा है, आर्टरीज लेके जा रही है। दिस पल्मोनरी आर्टरी इज़ एन एक्सेप्शन। पल्मोनरी आर्टरी में आप देख सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। हम यूजुअली हमारी जो आर्टरी होती है उसके अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, पर यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। सो पल्मोनरी आर्टरी इज़ एन एक्सेप्शन। ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से लंग्स तक लेकर जाता है। पल्मोनरी आर्टरी में एक वाल्व प्रेजेंट होता है अगेन, एंड इस वाल्व को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व, और ये लंग्स तक गया, ओके। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और ये अब बाहर हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल कर ली और हमने अब वापस ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया। अब क्या होगा, लंग्स में ऑक्सीजन आ गया, करेक्ट। यहाँ से एक पल्मोनरी वेन क्या करेगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ऑक्सीजन है अभी ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन आकर लेफ़्ट ऑरिकल के अंदर पोर कर देती है, ओके। अगेन पल्मोनरी वेन इज़ एन एक्सेप्शन, बिकॉज वेन के अंदर क्या फ्लो करता है, यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। क्योंकि आप इसको अब ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये माइंड मैप बना लो, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू मेक दिस, एंड ये आपके एक तरीके से आपके माइंड में अगर ये बैठ गया ये डायग्राम, तो आपको बहुत इजीली ये सब याद हो जाएगा। सो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे तो हो गई, तो पल्मोनरी वेन होगी यहाँ पे, इसीलिए सो दे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर लेफ़्ट ऑरिकल में आ गया। अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ़्ट ऑरिकल का जो ब्लड है, ये वैल्व्स खुल जाएंगे, बाइकस्पिड या मिट्रल वैल्व उनको बोलते हैं, और ये वैल्व जब खुल जाएंगे तो लेफ़्ट ऑरिकल का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल में एक यहाँ से एक वेसल जारी है, एक ब्लड वेसल, इसका नाम है अओर्टा। अओर्टा के यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, अओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व, और अओर्टा इस ब्लड को, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर फिर कर देती है, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और फिर वहीं से वापस क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा ऊपर के पार्ट से और इन्फीरियर वेना कावा नीचे के ब्लड बॉडी पार्ट से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं, और ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है और चलती रहती है। अब ये तो हमने देखा कि बॉडी में से कौन लेकर जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बॉडी में ही कौन लेकर आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट व्हाट अबाउट द हार्ट, दिस इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन, इट ऑल्सो नीड्स ब्लड। तो कार्डियक या कोरोनरी जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मसल्स ऑफ द हार्ट, एंड कोरोनरी या कार्डियक वेन क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है फ्रॉम हार्ट मसल्स टू राइट ऑरिकल डाल देती है, ऐसे होता है। कोरोनरी आर्टरी मैंने यहाँ नहीं बनाई बिकॉज इट वुड बी वेरी मतलब बहुत ही गंदा डायग्राम हो जाता, अभी भी कुछ खास नहीं है, तो इसीलिए, प्लस इट इज़ नॉट रियली पार्ट ऑफ द डायग्राम दैट यू विल सी इन योर बुक्स एज वेल। तो ये हमने हार्ट को अच्छे से पढ़ लिया। आई वुड रिकमेंड कि आप इसका डायग्राम आप भी बनाएं। नाउ हमने टू समराइज़ कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा अभी, वेना कावा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, अओर्टा, एंड कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन ऑल्सो हमने पढ़ ली, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी का अगर ओरिजिन पूछा जाए तो दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ अओर्टा एंड दे सप्लाई
ब्लड टू द हार्ट मसल्स। ये सब हमने अभी यहाँ पे सारी ब्लड वेसल्स पढ़ ली। अब हार्ट की दो कंडीशंस देख लेते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। इन्फ्रैक्शन के बीच में आई एम सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए थी, इन्फ्रैक्शन पूरा एक शब्द है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहते हैं। सो ये कैसे होता है, जब वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे फैट डिपॉजिट हो गया, तो कोई भी ब्लॉकेज अगर हो गया आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर या उसकी कोई ब्रांच के अंदर जो कि हार्ट को प्रोवाइड कर रही है ब्लड, तो आपको उस समय हार्ट अटैक आ जाता है या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। देन एजीना पेक्ट्रोसिस क्या है, चेस्ट पेन ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल। ये भी दोनों क्या है, कोरोनरी आर्टरी में ही होने वाली चीज़ें हैं। चेस्ट पेन होता है जब इनसफिशिएंट सप्लाई होता है ब्लड का हार्ट मसल को। सो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड एजीना पेक्ट्रोसिस वी हैव डन। नाउ हमने कौन कौन से वाल्व्स पढ़े, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं उसको। अच्छा, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर क्यों बोला, क्योंकि वो राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, सो दैट इज़ वाई, है ना। देन सेकंड हमने कौन सा पढ़ा, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर या बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। देन हमने पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व पढ़ा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो प्रेजेंट है, और हमने एक एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व पढ़ा जो कि अओर्टा के ओपनिंग पर प्रेजेंट है। दिस इज़ द बुक डायग्राम ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे हम नहीं बना पाए थे, जैसे यू नो दिस कॉर्डा टेंडिने, पैपिलरी मसल्स, ये हम नहीं वहाँ उस डायग्राम में नहीं था ये, बट आपको जो डायग्राम लेबल करने को आएगा एग्ज़ाम के अंदर वो ऐसा ही दिखेगा। एंड इसमें कॉर्डा टेंडिने का क्या फंक्शन है, वो जो इस ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, इसको जगह पे करके रखता है। कॉर्डा टेंडिने, ये जो वाइट मस्कुलर चीज़ है, इसको जगह पे लगा कर रखता है। ये पैपिलरी मसल्स हैं जहाँ से कॉर्डा टेंडिने आ रहा है, जहाँ से कॉर्डा टेंडिने जॉइंट है। बाकी तो सब सेम है, ऑल एवरीथिंग इज़ द सेम। नाउ कॉन्ट्रैक्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, हम सिस्टोल बोलते हैं, और रिलैक्सेशन को, रिलैक्स को हम डायस्टोल बोलते हैं। इन दोनों शब्द को आप याद रखना क्योंकि आगे जाकर काम में आएंगे। जब आपका ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्लैप्स खुल जाते हैं और वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन एट्रियल सिस्टोल, जो आपका ऑरिकल जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होता है। सो व्हेन एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब तो जो भी एक अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा चेम्बर जो है वो हमेशा रिलैक्स्ड रहेगा। सो एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। बट जब अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है, जब आपका वेंट्रिकल क्या है, जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो उसमें क्या होगा, ऑरिकल उस केस में रिलैक्स्ड होगा, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। तो ये बस याद रखना है। देन साउंड ऑफ द हार्ट, बहुत लोग बोलेंगे धक धक होता है, नहीं, इट इज़ एक्चुअली लब डब। सो लब जो साउंड होती है वो कहाँ से आती है, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, मतलब कि जो दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व्स प्रेजेंट है, दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, जब वो क्लोज होते हैं तो, और जब वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शुरू करते हैं तब लब साउंड आती है। और डब साउंड कब आती है, जब सेमील्यूनर वाल्व्स, कौन से, आओर्टिक एंड पल्मोनरी, दोनों पल्मोनरी आर्टरी और आओर्टा के अंदर जो बीच में जो प्रेजेंट है, राइट, वाल्व्स उनकी ओपनिंग पे, उनको सेमील्यूनर वाल्व्स कहते हैं। और डब साउंड तब आती है जब ये दोनों वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं और वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू करते हैं, राइट। तो एक तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में शुरू आती है लब, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में आती है डब, लब डब। नाउ BPM क्या होता है, बीट्स पर मिनट ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट, कितना होता है, 70 से 72 बीट्स पर मिनट पे वेरी करता है। 70 to 72 इज़ द नॉर्मल रेंज। नाउ कमिंग टू द ब्लड वेसल्स, हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, उनके हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हमने सबके बारे में पढ़ा। अब हम ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। तो ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, राइट, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। तो आर्टरी के बारे में बात करते हैं।
आर्टरी की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे कि इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हार्ट से दूर ले जाकर ब्लड को दे रही है. ओके. सो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फर्स्ट इट हैज़ थिक मस्कुलर वॉल्स इसकी काफ़ी थिक होती हैं, मस्कुलर वॉल्स होती हैं. सेकेंड, इट हैज़ ए नैरो ल्यूमेन. नैरो ल्यूमेन क्या होता है? एक सेंट्रल बोर होता है, सेंट्रल ओपनिंग कह सकते हो आप उसको. इट हैज़ ए नैरो ल्यूमेन. थर्ड, ब्लड इन इट फ्लोज इन स्पॉट्स. स्पॉट्स का मतलब जैसे आप ट्रेन में खड़े हो तो आप कैसे, ट्रेन नहीं, जैसे बस अगर रुकती है तो कैसे धक्का दे देकर जैसे चलते हैं, वैसे जैसे ब्लड जब पंप होता है हार्ट से तो एक धचका सा लगता है, एक जोर से ऐसे, सो दैट इज़ कॉल्ड स्पर्ट्स. सो ब्लड फ्लोज इन स्पर्ट्स इन आर्टरीज. नाउ टॉकिंग अबाउट वेन्स. तो अगर आपसे वेन्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे कि इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. आर्टरी क्या कर रही थी? हार्ट से बॉडी में जा रही थी, और ये क्या कर रहा है? बॉडी से हार्ट में जा रहा है, वेन. वेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देख सकते हैं हम कि इट हैज़ थिन मस्कुलर वॉल्स, it has a wider lumen and blood in it flows uniformly. It has thin pocket shaped valves. तो thin muscular walls, wider lumen मतलब central bore wider होगा, and blood in it flows uniformly. धचके से flow नहीं करेगा. and it has thin pocket shaped valves. ये इन दोनों का डायग्राम है, और ये भी लेबल करने को काफ़ी आता है एग्ज़ाम्स में. तो जो आउटर लेयर है, जो आउटर मोस्ट है, दोनों के अंदर वैसे सेम ही लेबलिंग है, एग्जैक्टली सेम लेबलिंग है, बट जस्ट थोड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है. एक्सटर्नल लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना. मिडिल लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, एंड जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, और जो सेंट्रल ओपनिंग है या जो सेंट्रल बोर है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं. इसमें भी सेम है, ये ल्यूमेन हो गया, ये ट्यूनिका इंटरना हो गया, ये आपका मिडिल लेयर जो है वो ट्यूनिका मीडिया होगा, आउटर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना. दैट्स इट. नाउ कमिंग टू कैपिलरीज. कैपिलरीज जानने से पहले हम दो इम्पॉर्टेंट शब्द सीखेंगे, आर्टीरियोल एंड वेन्यूल. सो आर्टीरियोल इज़ द फाइन ब्रांच ऑफ एनी आर्टरी and venule is the fine branch of any vein. Capillaries, they are very narrow tubes and they carry blood, very narrow tubes carrying blood. And इनकी main characteristic क्या होती है कि they contain a single layer of epithelial cell and they have no muscles. जो हमने आर्टरीज जैसे जो हमने इन जनरल पढ़ा था कि आर्टरीज के अंदर एक थिक मस्कुलर लेयर होती है, बट कैपिलरीज डू नॉट हैव a thick muscular layer. Actually they do not have any muscular layer, they only contain a single layer of epithelial cell. बहुत पतली होती हैं ये. Functions of capillaries: outward diffusion of oxygen, inward diffusion of carbon dioxide, then diffusion of substances like glucose, amino acids, urea, hormones, etc. and they allow WBCs to squeeze out through diapedesis. These are the functions of capillaries. Now vasodilation. Vasodilation क्या होता है? जिसके अंदर capillaries they can dilate to increase the blood flow. Vasoconstriction, capillaries can constrict or they can contract to decrease the blood flow. So vasodilation and vasoconstriction, easy. Now differences between arteries and veins. The definition में क्या डिफरेंस है कि ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू एनी ऑर्गन. डेफिनेशन वेन की क्या है कि ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एनी ऑर्गन टूवर्ड द हार्ट एक्सेप्ट हेपेटिक पोर्टल वेन. ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ये एक स्पेशल केस है. इनफैक्ट इसको तो समझना बहुत ईजी है, तो ये आपको हमेशा याद रहेगी बिकॉज इट्स वेरी स्पेशल. अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देखें आर्टरीज और वेन्स के अंदर, तो जो आर्टरीज होती हैं दे प्रोग्रेसिवली ब्रांच डिक्रीजिंग इन साइज़. तो जब आर्टरीज ब्रांच होती हैं, क्यों होती है? क्योंकि उनको हर बॉडी पार्ट तक, हर सेल तक उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना होता है. तो इतनी छोटी छोटी जगहों में भी उनको पहुंचाना होता है, तो दे कीप ब्रांचिंग. बट स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स क्या है? दे प्रोग्रेसिवली यूनाइट और इंक्रीज इन साइज. देन आर्टरीज में क्या है कि स्मॉलेस्ट आर्टरी ब्रेक्स इनटू आर्टीरियोल्स. हमने आर्टीरियोल्स के बारे में यहाँ पढ़ा था, राइट,
कि फाइन ब्रांच ऑफ एनी आर्टरी. सो स्मॉलेस्ट आर्टरी ब्रेक्स इनटू आर्टीरियोल्स, वेरी फाइन एंड स्ट्रक्चर. और अगर हम उसका देखें तो स्मॉलेस्ट वेन अराइजेस फ्रॉम वेन्यूल्स, ये भी हमने उसमें पढ़ा था. देन arteries have thick and more muscular walls, whereas veins have very thin and less muscular walls. Then walls of arteries are elastic in nature, whereas walls of veins are non-elastic. Then arteries have a narrower lumen, but veins have a wider lumen because they do not have such thick muscular walls because of that. Then arteries have no valves in their inner lining, but the veins, they have valves in their inner lining, in their inner lines to prevent backward flow of blood. Then arteries can constrict or dilate to control blood flow, but veins cannot constrict, they cannot do that. Then arteries are usually deeper placed, but veins are more superficial, they are nearer to the skin surface. So that is why you can also see something like blue or greenish thing, blood vessels flowing through. तो कहीं जगह, काफ़ी जगह आपको दिख सकता है ऐसे. So they are more superficially placed, nearer to the skin. Then they do not collapse when empty, but the veins do collapse when they are empty. Then blood in arteries flows in jerks with great pressure. जो spurts हमने पढ़ा था कि blood in arteries flows in spurts, actually like that way it flows in jerks, है ना. But in veins it flows uniformly, continuously with very little pressure. Then arteries they carry fully oxygenated blood except the pulmonary artery, ये जो एक exception हमने पढ़ा. In veins also they carry partially deoxygenated and CO2 laden blood except pulmonary vein. So the pulmonary artery and vein, they are exceptions. Now the blood circulation systems, there are two types of blood circulation systems. कि अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन भी अगर हो रहा है तो दो टाइप का हो रहा है, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक. पल्मोनरी छोटा वाला है, शॉर्ट वाला है. सिस्टमिक बड़ा वाला है, जो मेजर सर्कुलेशन है बॉडी में जो हमारा हो रहा है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है. पल्मोनरी, द शॉर्ट वन इज़ द pulmonary circulation from heart to the lungs mainly. एंड इसमें क्या हो रहा है, इट स्टार्ट्स इन द पल्मोनरी आर्टरी विच फर्दर ब्रांचेस टू एंटर द रिस्पेक्टिव लंग्स. देन पल्मोनरी वेन्स कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट. एंड सिस्टमिक में क्या हो रहा है, द लॉन्ग वन इज़ द सिस्टमिक सर्कुलेशन जो अओर्टा से बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है. एंड इट स्टार्ट्स विद द अओर्टा विच आर्चेस बैक, मतलब हार्ट के पीछे से जागती है, और वो हार्ट के पीछे से जब जाती है तो हम उसका नाम स्लाइटली चेंज कर देते हैं, हम उसको डॉर्सल आउटा कहते हैं. एंड व्हाट इट डज, इट सेंड्स आर्टरीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय वेन्स एंड पोर्ड बैक इनटू द हार्ट. कहाँ पे एग्जैक्टली, हार्ट में कहाँ, राइट ऑरिकल में, राइट. सो पल्मोनरी एंड सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशंस. नाउ ये है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो हमने थोड़ी देर पहले एक हिपैटिक पोर्टल वेन के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे कि एक्सेप्ट हिपैटिक पोर्टल वेन, वेन नाम है बट वेन क्या करती है, यूजुअली वेन क्या करती है, ऑर्गन से टूवर्ड्स द हार्ट वो करती है ट्रांसपोर्ट ब्लड. बट हिपैटिक पोर्टल वेन एक एक्सेप्शन है जो ऐसा नहीं करती, वी विल सी वाई. तो यहाँ पे लंग्स हैं, ये एग्जैक्टली सेम डायग्राम है, बट अब मैंने नीचे जो अओर्टा है और पल्मोनरी वेन है, सॉरी पल्मोनरी जो हमारी इंफीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा है, उनके भी कहाँ कहाँ कौन कौन जा रहा है कौन से ऑर्गन में, उसका भी मैंने बनाया है. सो यहाँ लेफ़्ट वेंट्रिकल से अओर्टा निकल रही थी हमारी, राइट. अब ये हमने यहाँ पे आप मान लो ऑर्गन्स हैं, लिवर है, यहाँ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी. तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से जहाँ से अओर्टा निकल रही है, अओर्टा से जो लिवर में जा रही है, स्टमक में जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी, इन सब में अओर्टा की एक ब्रांच जा रही है. जो अओर्टा की ब्रांच लिवर में जा रही है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है, उसको हम कहते हैं हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, जो लिवर में जा रही है. स्टमक और इंटेस्टाइन का
आर्टरी में जो जा रही है उनका नाम नहीं मेंशन है, सिलेबस में नहीं है। किडनी में जो जा रही है अओर्टा की ब्रांच, उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। तो रीनल वर्ड इज़ कनेक्टेड टू किडनी एंड हेपेटिक वर्ड इज़ कनेक्टेड टू लिवर। अब ये यहाँ पे पहुँच गई, चलो ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा? स्टमक और इंटेस्टाइन से भी जाना है, तो लिवर से तो सीधा जाकर ये मिल जाती है कौन से ब्लड वेसल में? सीधा ये वेना कावा में मिल जाती है, लिवर में, लिवर की डीऑक्सीजनेटेड वाली वेसल जिसको हम हेपेटिक वेन कहते हैं। किडनी से एक आ रही है रीनल वेन, वो भी सीधा वेना कावा के अंदर मिल जाती है। बट स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली कोई भी वेन नहीं जा रही जो कि वेना कावा में मिल रही है। सो व्हाट हैपन्स, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से 2 वेन्स निकलती है छोटी सी, जो कि साथ में मिल जाती हैं और लिवर में जाती है, और लिवर से फिर वो साथ में हेपेटिक वेन के थ्रू उनका भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और ये जब ये दोनों स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो यहाँ पे जो दोनों की वेन बन रही है, इसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिलरीज एंड इट एंड्स इन कैपिलरीज। ओके, सो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेन्स जा रही है उसको हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। और हेपेटिक पोर्टल वेन अब हमें समझ में आया है, राइट, कि वो बॉडी पार्ट से हार्ट तक नहीं जा रही है जैसे नॉर्मल वेन्स करती है। वो क्या करती हैं, ये स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर तक जा रही हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्टेट द ब्लड वेसल विच स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिलरीज एंड एंड्स इन कैपिलरीज, तो कौन हो गई वो? हेपेटिक पोर्टल वेन। बाकी तो पूरा डायग्राम आप देख सकते हो सेम है। दिस इज़ अ लिटिल मोर नीटर आई फील। सो आप इसको बना सकते हैं। देन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की क्या यूटिलिटी है? द फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज फर्स्ट brought to the liver, which acts like a store to regulate the quantity of nutrients flowing into general blood circulation, like excess sugar is stored as glycogen, and the liver also renders certain poisonous food harmless. आपने जो भी खाया, जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ, तो वो सब पहले आकर लिवर में जाता है, और लिवर क्या करता है? इट एक्ट्स लाइक अ स्टोर, और वो क्या करता है? क्वांटिटी को रेगुलेट करता है कि ब्लड में जो फ्लो हो रही है, जो क्वांटिटी फ्लो कर रही है, इट शुड बी ऑफ द राइट क्वांटिटी। अगर आपने आज ज़्यादा शुगर खा ली या, तो वो लिवर क्या करेगा? उस एक्स्ट्रा शुगर को फ्लो नहीं करने देगा, उसको वो जनरल अपने जैसे स्टोर कर लेगा। जैसे एक्सेस शुगर अगर आपने खाई, आज ज़्यादा मीठा खाया, तो क्या होगा? वो ग्लाइकोजन की तरह स्टोर हो जाएगा। और तो लिवर करता है ब्लड की जो रेगुलेट करता है जो भी न्यूट्रिएंट्स फ्लो कर रहे हैं ब्लड के अंदर, एंड ऑल्सो द लिवर ऑल्सो रेंडर्स सर्टेन पॉइजनस फूड हार्मलेस। लिवर भी जो ऐसे पॉइजनस फूड आपने कुछ खा लिया, मतलब कुछ भी पॉइजनस चीज़, टॉक्सिक जो हो, उसको लिवर रेंडर्स हार्मलेस। नाउ अगेन समराइजिंग ऑल द ब्लड वेसल्स, तो कहाँ से कौन ओरिजिनेट हुई, कहाँ जा रही है? तो एंटीरियर वेना कावा या एंटीरियर वेना कावा या फिर इंफीरियर वेना कावा भी कहते हैं जिसको। तो ये फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इनटू राइट एट्रियम, ये क्या करती है? राइट इंटीरियर वेना कावा इज़ ऊपर वाला, ए से शुरू हो रहा है तो हमेशा मतलब ऊपर बड़ा वाला। ओके, एंटीरियर वेना कावा फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनटू राइट एट्रियम, या राइट ऑरिकल भी बोल सकते हैं, एट्रियम भी बोल सकते हैं। कई जगह ऑरिकल बोलते हैं, कई जगह एट्रियम बोलते हैं। तो जो ऊपर से जो हमारी सुपीरियर वेना कावा, जिसको हम एंटीरियर वेना कावा कहते हैं, वो क्या करती है? अपर पार्ट से हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और कहाँ डाल देती है? राइट ऑरिकल के अंदर। पोस्टीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा क्या करती है कि हमारे लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और वो भी राइट ऑरिकल के अंदर पोर कर देती है। देन पल्मोनरी वेन्स क्या करती है? पल्मोनरी वेन्स जाती है 2 वेन्स फ्रॉम ईच लंग इनटू लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वेन क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहाँ से? लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में। एंड पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। अओर्टा क्या करती है?
हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है एंड इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल दी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. देन लिवर में देखा जाए तो एक हेपेटिक आर्टरी है जो हमारी अओर्टा से लिवर में आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है. हमारी एक हेपेटिक पोर्टल वेन है जो कि स्टमक एंड इंटेस्टाइन से जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लिवर के अंदर लेकर आ रही है. और हेपेटिक वेन क्या है, जो अब स्टमक, इंटेस्टाइन और हमारे लिवर का खुद का, इन सब का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लिवर से जो हमारी नीचे जो इन्फीरियर वेना कावा है उसके अंदर ज्वाइन कर देती है. किडनी में रीनल आर्टरी आ रही है, फ्रॉम अओर्टा टू किडनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है. रीनल वेन है जो कि किडनी से पोस्टीरियर वेना कावा या फिर इन्फीरियर वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है. सो दिस वाज द समरी ऑफ ऑल ब्लड वेसल्स, फ्रॉम वेयर दे आर ओरिजिनेटिंग, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड दे आर कैरिंग एंड फ्रॉम वेयर दे एंड. नाउ फंक्शंस ऑफ लिम्फ. सो फंक्शन ऑफ लिम्फ, पहला न्यूट्रिटिव, कि इट सप्लाइज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द पार्ट्स वेयर ब्लड कैन नॉट रीच. वहाँ पे लिम्फ काम में आता है. ड्रेनेज, इट ड्रेन्स अवे एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड. देन एब्जॉर्प्शन, फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फैटिक्स. डिफेंस, मेन फंक्शन इसका डिफेंस होता है. दे रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम द टिश्यूज. नाउ लिम्फ ग्लैंड्स इन द बॉडी, टॉन्सिल्स एंड स्प्लीन, ये हमने लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फ ऑर्गन्स, एक्चुअली टॉन्सिल्स एंड स्प्लीन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. टॉन्सिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द साइड्स ऑफ द नेक. एंड स्प्लीन एक रेडिश ब्राउन कलर के अंदर होता है एंड इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमेन रीजन बिहाइंड द स्टमक एंड अबव द लेफ्ट किडनी. एंड इसके फंक्शंस क्या होता है स्प्लीन के? इट एक्ट्स एज अ ब्लड रेजर्वॉयर. ऐसा भी हो जाता है जैसे हैमरेज हो गया, या उस समय जो स्प्लीन होता है, इट एक्ट्स एज अ ब्लड रेजर्वॉयर. इट सप्लाइज प्योर और गुड ब्लड, राइट. हैमरेज जब हो जाता है तो क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, तो उस समय जो ब्लड होता है ये सप्लाई करता है. प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज दे हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी. lymphocytes protect our body. So lymphocytes produce करता है कौन? spleen. Then it destroys the worn out RBCs, right? It destroys the जो पुराने हो जाते हैं RBCs, जो weak होते हैं, old होते हैं, तो RBCs को कौन destroy करता है? उनको spleen करता है. Then एक embryo stage के अंदर, embryo के अंदर कौन RBCs produce करता है? spleen. ये हमने RBC के अंदर भी पढ़ा था. So embryo stage के अंदर RBCs is produced in spleen. So this was whole circulatory system chapter in detail I've tried to cover, and thank you so much for watching, and please look forward to my next videos. Thank you.